Assalamu alaikum and good morning. This is my morning show today. It's Monday and I'm here at 11:30. This program may run up to 1 hour or more. So it is up to you. If you wanted to be the guest of this program, you just enter the link which I am clicking over here and giving you. Your performance will be there. If you click this link, you will be the member of this program. So let us go first for the introduction to do something entertainment, and so we are coming back. Just wait and enjoy this little simple music. So we would say you welcome again. And you will find a lot of things over here with the music, with the Kali, with the videos. And I'm here to say you Assalamu alaikum, brother and sister. The first as usual, it is my PIA, the long-lasting issue. We are being suffering because of the .com. So let us discuss and have a music show with .com. So this is the .com. The professionals of PIAC. Not the .com that would break us. Turn PIAC to PL then forsake us. Sell us out for pennies on the dime. To the offshore bureaucrats of crime. Remember this, you .coms. Yaad rakh EPIC jasulatcar.com. We the pros will take back our PIs from your father's corrupted hands. Yeah, from your corrupted hands. मेहमान PAC असां जो फख्र वा न कयो उनखे नुक़सान PAC वापस वठंदासीं इहो आ असां जो ईमान Sollywood City, stand up! Got the blueprint ready for the mission, no confusion. Crafting stellar content, sharp marketing execution. Hit them with the strategy, then distribute the vision. We are the professionals, next gen in this division. Yeah, we build in Sollywood and New Satabad with precision. The professionals of PIAC, a league above the rest, man. The professional PIAC! सॉलीवुड शहर से PIAC की शान ये कंटेंट मार्केटिंग नस्लों की पहचान ना .com ना PIL ना है PIAHC हम प्रोफेशनल्स जिनकी कुर्बानी है सच्ची ये ऑफशोर की साजिश ना मंजूर अपना 808 गूंजे जिसमें है दम जरूर कराची की आवाज ये न्यू सैदाबाद हम जिंदा कौम रखेंगे सब याद Yeah, Sollywood City, stand up. PIAC on the rise, turning digital dreams to reality right before your eyes. We got the strategy locked for the media mission. Next gen professionals leading in this division. Got that flawless execution, sharp content distribution, building up new Satabad tech revolution. We are the professionals of PIAC. The professionals of PIAC. Hey, Jamaat Sain PIAC असांजी शान आ सिंध जी है पहचान आ warnings to PIAHC facilitated.coms do not harm PIAC we will take it back कब्जा ना मंजूर do not harm PIAC we will take it back .com तुसी वापस जाओ .com तुसी वापस जाओ वापस जाओ हम हैं PIAC के प्रोफेशनल्स ना के .com के एजेंट्स
जो PIAC को PIL बनवा के कमजोर करके PIAHC बना के ऑफशोर नौकरशाही को कोड़ियों के दाम बेच दें। ये हमारी मीरस हमारा लहू है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम PIAC के प्रोफेशनल्स। Yeah, Sollywood City, stand up. PIAC on the rise, turning digital dreams to reality right before your eyes. We got the strategy locked for the media mission. Next gen professionals leading in this division. Got that flawless execution, sharp content distribution, building up new SATA better tech revolution. We are the professionals of PIAC. The professionals of PIAC. Yeah. हम हैं PIAC के प्रोफेशनल्स, कलमकार टेक्नो मास्टर्स, ना के .com के महरे जो बेचें ख्वाब कोड़ियों के दाम पर। PL बना के कमजोर, PIAC की साजिशों से खबरदार। ये ऑफशोर नौकरशाही सुने, ये मुल्क है हमारा, ये अदारे हमारे यार। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्ट्रीब्यूशन, रगों में दौड़ता लहू, हम सुल्लीवुड की आवाज है, न्यू सईदाबाद का मंशूर सुन लो। तो सुन लिया आपने न्यू सईदाबाद का मंशूर, जहाँ से हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। हम आगे बढ़ेंगे और अपने प्रोग्राम को तारीफ कराएंगे, तो लिंक भी भेजेंगे। जो दोस्त इस लिंक कबूल करेगा वो इस प्रोग्राम में आ सकता है और शेयर कर सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप हमारे प्रोग्राम में कैसे शामिल होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक्चुअली हमारा प्रोग्राम आप क्यों कर एंजॉय करेंगे और एंजॉय कर रहे हैं। तो लिंक भी दिखा रहे हैं, ये प्रोग्राम भी आप सामने आएगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं किसी और मनोरंजन के ऊपर, जब तक हम अपने मनोरंजन पे चल रहे हैं, जब तक हम अपना कुछ और सेटअप कर लें। मॉर्निंग शो है जस्ट चैट, हम इंतजार कर रहे हैं। आप कोई ब्रेकिंग न्यूज लेके आ जाए, कोई अपने काम की खबर लेके आ जाए, कोई तफसील लेके आ जाए, सबसे सबकी whatsoever you wanted to talk on this show. So the home is, this is one who actually present you as the guest, and I will be working as the host. So, yeah, ladies and friends, this is my new studio and new colorful. Everything is different compared with the previously. I had made different transmissions. So, you are welcome. The guest will have super guest. Okay, let us see as usual one play. Just killing time. Just killing time for you. Very well. हयाती गुजारा गुजारा हो अल्लाह तो खां सिवा। वक्त जो ही गूंगो सिज शाम थियण खां अॻु अलाए केतिरा घरनि जा चराग गुल करे छॾी थो आहे। हर पल तो खे पुकारियां पुकारियां हो अल्लाह तो तक दिना दिन तक तक दिना दिन तक दिना दिन तक मोटिया मोटिया हयाती गुजारा गुजारा हो अल्लाह तो खां सिवा। वक्त जो ही गूंगो सिज शाम थियण खां अॻु
अल्लाह केतिरा घरनि जा चिराग गुल करे छॾी थो आहे। हर पल तोखे पुकारियां पुकारियां हो अल्लाह तो तक जिना दिन तक तक जिना दिन तक जिना दिन तक मोटिया सच्चा मोटिया। तो ये तक धिनातिक से हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी। जस्ट किडिंग। अब हम इंतजार करेंगे, अब हमको दावत देंगे, लिंक देंगे। इस लिंक पे अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में शरीक हो सकते हो, लाइव आ सकते हो, कमेंट्स भी दे सकते हो। आपके कमेंट्स भी हम शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। जैसे भी आपके कमेंट्स आएंगे हम इसको शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। माफ करना, आपके लिए मैं एक टेस्ट बना रहा था ताकि अगर हम आपको लाइव लेना चाहें तो आप किस तरीके से हम लाइव ले सकते हैं। तो आपको इनवाइट करें तो हम आपको क्या लिंक देंगे। तो आपके लिए हम लिंक लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। आपको इस प्रोग्राम में लिंक क्लिक चाहें तो इट इज ऑप्शनल, जबरदस्ती नहीं है, ऑप्शनल। चाहें तो इस लिंक को कैश कर सकते हैं, आप मेहमान बन सकते हैं, क्लास किसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। किससे ब्राउज है, सिस्टम पर ब्राउज करना चाहें, आप अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं, कुछ भी जो भी कुछ आप चाहते हैं वो आप बता सकते हैं दोस्तों को। ट्रांसमिशन जो है पूरी वर्ल्ड वाइड है, सब सुनेंगे। ये जो लाइव भी होगी, तमाम चैनल्स पे चलेगी, जो ग्रुप्स हैं सब ग्रुप पे चलेगी, इसको शेयर कर सकते हैं। तो जी हमने स्टार्ट कर दिया है आपको दावत देने का। तो इस दावत में अभी हम
सबसे पहले तो ये सब इशू है, पीआई वालों को ज़्यादातर इन्वाइट करूँगा कि आ जाओ, आप आ जाओ ट्रांसमिशन के अंदर शरीक हो जाओ, ये इशूज बताओ, पब्लिक करो। तो उसके अलावा पूरा सिंध इशू से भरा हुआ है, सिंध के खिलाफ भी बहुत से लोग खड़े हो गए, वो भी हम देते हैं कि आओ अपनी चीज़ें बताओ, सारी चीज़ें डिस्कस करो। तो हम लाइव जाते हैं प्रोग्राम पर, जनरल तो डिस्कशन होती रहेगी, नई बात नहीं है। चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, आप देखें कि आपको जब इनवाइट किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर तो आप कैसे देखेंगे। और हमने एक एक्सपीरियंस सर पिछली जो तंजीम बनाई थी इसमें आपको दिखा दिया था कि कैसे प्रोग्राम लाइव करते हैं और क्या करते हैं। ट्रांसमिशन का स्टाइल भी नहीं हमने आपको बता दिया था। आप चाहें आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि आप हमारे प्रोग्राम में डायरेक्ट लाइव हो जाए, कमेंट्स भी दे सकते हैं, आ सकते हैं, प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका है और इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि से हमारे मेंबर बन सकते हैं, अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम पर लिंक्स दे रहा हूँ जो आपको बताएगा लाइव हो कैसे हो, आप देख भी सकते हो डायरेक्ट प्रोग्राम चल रहा है। सॉरी, तो आप लाइव चलना चाहो तो चल भी सकते हो, फिर भी बता सकते हो, अपनी इशू भी बता सकते हो। हम आपको लाइव ट्रांसमिशन में बिल्कुल लाइव दे रहे हैं। प्रोग्राम में एनर्जी का हम दे रहे हैं, चाहे तो एंटर हो सकते हैं। आ जाए हमारे इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लाइव है, लाइव है। प्रोग्राम में आ जाए, शामिल हो जाए, डिस्कस करें, शो करें कि आपको सारी चीज़ें जो भी इशू है, कोई कॉमेडी सुना दे, कोई लतीफ़ा के सुना दे, हाँ, कोई कमेंट्स दे दे, आपके कमेंट्स भी आ जाएंगे, जो भी आपका ऑप्शन है आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या चाहते हैं, लाइव आना चाहते हैं नहीं, लिंक हमने आपको भेज दिया है, लिंक हमने आपको बता दी है, हो सकते हैं। हमने आपको फॉर्म पे जितने भी हैं उस पर मैसेज भी भेज दिए हैं, कर दिया है कि आप चाहो तो प्रोग्राम के गेस्ट बन सकते हो, न चाहो तो बन सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। सर्चिंग कर रहे हैं मोबाइल से उन ग्रुप्स को जहाँ हमें से भेजना है ताकि लोग हम चाहे तो शुरू कर सकते हैं। लिंक हमने दे दिया है आपको, लिंक दे चुके हैं आपको, आप लिंक से डिस्कस कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं प्रोग्राम। हर वक्त हम एक नया स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं, एक नए स्टूडियो में आ जाते हैं, स्टूडियो में आपसे बात करते हैं, इस नए स्टूडियो से आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो लाइव करेंगे, चाहें तो शरीक कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमने लिंक भी दे दिया है, हमने आपको सारी चीज़ें दे दी हैं, आप मॉर्निंग शो है, तकरीबन अभी 12 है, 11:30 बजे हमने शुरू किया, घंटा डेढ़ लंबा नहीं चलाएंगे, घंटा डेढ़ चलाएंगे ताकि चलता है। चाहे आप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सिस्टम में आ सकते हैं, ये सिस्टम आपको वेलकम करता है, सिस्टम से आप लाइव हो सकते हैं। लाइव प्रोग्राम डेली ट्रांसमिशन होगी, डिफरेंट औकात हैं,
ये तो स्टार्ट है, शुरुआत है। सुबह को होगी, कल शाम को, कभी दोपहर को, कब होगी ट्रांसमिशन के लिए हम कभी करते हैं। हकीकत में एक्चुअली आपको आप पता है हमने ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया। हम सिर्फ ये एजुकेशन के साथ साथ करते हैं। हम वो लोग जो हमारे दोस्त लाइव आधार कार्ड वगैरह सारी चीजें, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को कैसे लाइव ला सकते हैं, आप ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो फोन से उठा के और वो दूसरा डायरेक्ट लाइव होते हैं, तो उनकी तस्वीरें कभी आती हैं कभी नहीं आती। लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई कंप्लेन नहीं आ रही, कभी क्या मसला होता है उनका, कभी क्या मसला होता है। तो हमें एक्चुअली हमारा काम ही एजुकेट करना, लोगों को सिखाना, बताना और दिखलाना, अमल करके दिखाना कि हम लाइव कैसे हैं और हम कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव, और उनको कैसे प्रोग्राम करना चाहिए और ये कैसे करें। देखें हमारी बाकायदा ट्रांसमिशन चल रही है। अजूबी के यहाँ लाइन भी है। अजू मेरा निक नेम है, आई लव इट, आई लव दिस नेम। मुझे गाँव वाले जो जानते हैं, पुराने लोग जो साथी खेले हैं, अगर हयात हैं, जिंदा हैं तो अजू कहते हैं। और मुझे भी खुशी होती है अपने निक नेम सुन के। नेचुरली सॉलीवुड सिंगिंग मीडिया प्रोडक्शन मेरी है, मैं इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मैनेज करता हूँ, सारी मीडिया मैनेजमेंट कंप्लीट मैनेज करता हूँ। अल्लाह ने स्किल दी है, सारी स्किल्स यूज करता हूँ। तो आपको इसलिए मैं बार बार इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप चाहो तो स्किल से हमारे साथ आ सकते हो, हमारे मेहमान बन सकते हो और डिस्कशन कर सकते हो। तो जब आप आओगे, डिस्कस करोगे, तो हमारे गेस्ट बन के आपसे बातें भी कर सकते हो। तो कोई भी हो, हम आपको ये सिर्फ एक टेस्ट ट्रांसमिशन का मकसद ये नहीं है कि हमेशा आपके सामने है। हम दिखा रहे हैं अपने उन लेजेंडरी सीनियर एक्टर्स, अदाकार को जो लाइव आ रहे हैं, लाइव शो कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप ऐसे भी आ सकते हो। जब आप ऐसे प्रोग्राम करोगे, इसमें ऐसे प्रोग्राम में आके अपनी वीडियो जो आप बनाते हो शेयर करते जाओ, जो आप अपनी वीडियो बना रहे हो आप शेयर करते जाओ। बात समझ में आई ना आपको? तो हम बूस्टिंग कर रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं। हमारी सारी जिंदगी जो है, जो मकसद है, वो सिर्फ लोगों को सिखाना है, लोगों को एजुकेट करना है। अल्लाह ने जो भी हमें स्किल दी है, जो तालीम दी है, अल्लाह ने जो शऊर दिया है, वो हमें लोगों को सिखाना है कि भाई इसको आप कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो अपने हिसाब से, जो आपके पास स्किल है, लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है। अब देखेंगे, मैं लाइव ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, हमारे बहुत से कॉमेडी दोस्त हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करें तो अलग करते हैं सारी से। भाई आप ऐसे स्टूडियो में आपको सीखना है तो आ जाए मेरे पास, वेलकम है, चाय भी पी ले, मैं आपको सिखा दूंगा तो ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसमिशन क्यों होती है। तो आप साइड पे, जैसे मैं ये दिखाता रहा हूँ, साइड में अपने प्रोग्राम देख ले रहा हूँ, तो साइड में मैं प्रोग्राम भी दिखाता हूँ, लाइव प्रोग्राम कैसे। तो आप अपने जो क्लिप बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये छोटा सा क्लिप मैंने बना दिया, तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये क्लिप है। हम हैं PIAC के प्रोफेशनल्स, ना के .com के एजेंट्स, जो PIAC को PIL बनवा के कमजोर करके PIAHC बना के ऑफशोर नौकरशाही को कोड़ियों के दाम बेच दें। ये हमारी मीरस, हमारा लहू है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम PIAC के प्रोफेशनल्स। तो आपने देखा कि ये हमने प्रोग्राम इस तरीके से पेश करते हैं। छोटा सा क्लिप था मेरे पास, क्लिप डिजाइन किया और क्लिप रखा, तो कॉमेडी शो करते हैं। सब आप सब लोग हैं और वाहिद रजा है, जितने भी दोस्त हैं मेरे, अपना प्रोग्राम है ऐसे ट्रांसमिशन करें, बाकायदा टीवी स्टूडियो की तरह चलाएं और लोगों को दिखाएं कि प्रोग्राम कैसे होते हैं। एजुकेट मेरा काम ही मल्टीमीडिया सब्जेक्ट, कभी मैं साफत में घुस जाता हूँ, कभी मैं PIA में घुस जाता हूँ,
अल्लाह ने इतनी शऊर दिया, अकल दी है, एजुकेशन दी है, किस काम की है? इस दुनिया में जब आएंगे तो एजुकेशन को दिखाएंगे तो ही काम कर सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने को धंधा करो, आप इस तरीके से लाइव आ जाओ, लाइव आके आपने प्रोग्राम को, जब लाइव का शौक है तो आप ऐसे लाइव प्रोग्राम करो। और ये जैसे मेरे साथ ही दोस्त हैं, मैं ऑनलाइन सिखाऊंगा भाई आपको, आप ऐसे चैनल बनाओ, अपनी खबरें जो है आप अखबारों को देते हो, चैनल के लोगों बना के देते हो, तो यही रिकॉर्ड करते हो, या अपने उस पर भी ट्रांसमिशन करो, तो प्रोग्राम कर सकते हो। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया कि कैसे ये होता है। लाइव का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बतला दिया कि लाइव कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले भी सिखाया कि आप लाइव कैसे हो सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक लिंक में मैं खुद ही अपना लिंक क्लियर कर रहा हूँ, तो आप देखोगे मैं लाइव आ गया, खुद लाइव आ गया, आ जाता हूँ। इस तरीके से आपको भी लाइव लेंगे, देखें मेरे यही है, लिंक किया हुआ है, आप भी आ सकते हो लाइव पे, लाइव हो सकते हो प्रोग्राम में। सारी चीजें पहले भी मैंने आपको ट्रांसमिशन करके बताई है, दिखाया है कैसे लाइव होता है। हो जाए इस चिड़िया बिल्डिंग पे जनाब। या तो अगर बहुत से लोग दोस्त पूछते हैं कि हम नहीं आ पा रहे, हो सकता है कि रीजन हो, आप स्ट्रीम यार्ड जो मैंने .com ये डाउनलोड कर लो अपने ऐप में, इस तरीके से आप आसानी से ऐड हो जाओ। प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं, आ सकते हैं, प्रोग्राम पे आ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कर सकते हैं, और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बहुत है अपने प्रोग्राम जो आप करते हैं, कॉमेडी शो करते हैं, छोटे छोटे खाके बनाते हैं, आप खाके बना के करके इसको कर सकते हो। जैसे मेरे छोटे छोटे खाके बनाए और थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ, छोटे से यूट्यूब प्रोग्राम बना हुआ है, दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप भी कर सकते हो, साइड पे आ जाए। पियाशी असांजी शान आ सिंध जी है पहचान आ Warnings to PIAHC Facilated.coms. Do not harm PIAC, we will take it back. Kabza na manzoor. Do not harm PIAC, we will take it back. .com. Tusi wapas jao. .com. Tusi wapas jao. Wapas jao. तो आपने देखा कि कहीं से भी कोई म्यूजिक के लिए बनाओ, उसको शेयर करो, पा सकते हो, ट्रांसमिशन ले सकते हो, ट्रांसमिशन दे सकते हो, तो ले सकते हो। हमेशा वेलकम करते हैं, ऐसा बने, साथ आ जाए, कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीजें प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करते हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे लाइव होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि भाई कैसे आओगे, कैसे दिखोगे, उसके भी मेरे नमूने आपको बता दिए हैं, टेक्निक बता दी है, कैसे दिखोगे, कैसे आओगे, प्रोग्राम है, आप आ सकते हो लाइव। सोचो थोड़ा सा, देखते रहते हैं, हम आपको लेंगे, उसके बाद स्टेज में है, तो आप आ रहे हैं, प्रोग्राम है, मजबूर तो बहुत है, लेकिन अब
तकरीर करने का बोल नहीं है, जस्ट एजुकेट। आप टेक्स्ट लो, आप टेक्स्ट में सवाल करो, आपको आपका टेक्स्ट का सवाल भी आ जाएगा और हम जो आपको जवाब देंगे कमेंट्स में डिस्प्ले भी हो जाएंगे कि आपने हमसे क्या सवाल किया है, शो भी कर लोगे डिस्प्ले में कमेंट्स में। ये प्रोग्राम सही है, हिस्सेदार बन सकते हो। हम कम करते हैं प्रोग्राम इसके साथ बातें भी करेंगे, चुटकुले भी दिखाएंगे ताकि टाइम किल हो। मैं मकसद फिर कह रहा हूँ, ये मकसद नहीं है कि मुझे कोई डिस्प्ले का शौक है, कोई कम्युनिकेशन का शौक है, या आपसे बात करने का कोई शौक है, या कोई शोबाजी करने का नहीं। मैं टीचर हूँ, मेरा काम एजुकेट करना है। मैं जहाँ भी मैंने काम किया, काम के साथ भी मेरे साथ टीम काम करती है, मैं उसको एजुकेट करता हूँ, मैं आपको भी एजुकेट करता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं एजुकेट करूँगा और एजुकेशन भी हमारा सारा सिस्टम है। आप जब भी आएंगे तो हम आपको एजुकेट करेंगे, किसी भी फोरम से आएंगे हम सिखाएंगे। और ये डिजाइन करके हमने आपको बता दिया कि आप अपने उन सब दोस्तों को, चाहे मेरे मीडिया से कल रखने वाले दोस्त हों या मेरे साहब से कल रखने वाले दोस्त हों, सबको सिर्फ ये बताना है कि आप कैसे ऑनलाइन मीडिया में कैसे अपने प्रोग्राम आपने कॉपी किए होंगे, काफी रिकॉर्डिंग दी होंगी आपने, ठीक है, अखबार को भेज दी, जब तक अखबार प्रिंट करे, जब वो टीवी के न्यूज पे आपका टर्न आ जाए, अखबार दूसरे दिन छपता है वो आ जाए, तब तक आप लाइव ट्रांसमिट करके उसको पेश कर दो, पेश कर दो, इस तरीके से लाइव स्टोरी बना लो। सीखना है, मैं आपको सिखा दूंगा, मेरा काम यही है, मेरा काम ये है कि आपको सिखाऊँ, ऑनलाइन सिखाऊंगा। आप कॉमेंट्स में आएंगे तो कॉमेंट्स में बताऊंगा, तो जो भी होगा आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। देखिए कितने स्टोरी मैंने बनाए हैं, कितने कलरफुल स्टोरी बनाए हैं। देखिए मेरा टाइम भी चल रहा है, मेरा लोगो भी लगा हुआ है, मेरी सारी चीजें लगी हुई हैं, ये सब ट्रेनिंग है मेरा। मैं कौन हूँ ये भी लगा हुआ है, मेरा स्टेटस क्या है ये भी लगा हुआ है, मेरे बैकग्राउंड में मेरे स्टूडियो में क्या पड़ा हुआ है, मेरा जो डेस्क है मेरे स्टूडियो में क्या कुछ पड़ा हुआ है, जो यूज करता हूँ ट्रेनिंग के लिए, सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। मैं मौजूद, आप घबराते क्यों हो, साथ हैं, डोंट वरी, लर्न, सीखो सीखो सीखो। हम हर वक्त जहाँ भी काम करते हैं आपको बता देते हैं सीखो, सीखते तो आप तकलीफ परेशान नहीं होते। सीखने से ज्यादा बॉसेस की चमचागिरी को तोड़ते थे। क्या हुआ, क्या हुआ, ये खत्म हो गई, कोडिंग के दाम चली गई, बगैर किसी वजह के, आपकी वजह से, किसी और की वजह से नहीं, आपकी वजह से। क्यों कि आपने मेरी बातें नहीं की, हमारे सच को जो प्रेडिक्शन कर रहे थे, हमने जो देखा था तो क्या होने वाला है पीआई के साथ, आपने उसको समझा नहीं। आपने पीआई एक कमर तोड़ दी, पीआई कमाता था, पीआई के रेवेन्यू जनरेशन सेक्शन थे, उससे पीआई को कभी गवर्नमेंट ने नहीं दिया भाई, गवर्नमेंट ने तो हमसे दिया है, रियासत स्टेट ने तो हमसे दिया है, मुफ्त की टिकटें दी है, सरकारी अमलदारों ने टोकन दिया है, सहाफियों ने मुफ्त की टिकटें दी है, घुमाया है, बार अयाशी की है, उन्होंने प्रोटोकॉल लिया है हमसे, मुफ्त में नए नए एयरपोर्ट खोले हैं उन्होंने, हमारा खर्चा किया है, वहाँ कभी वहाँ का खाना भी हम खिलाते हैं, वहाँ स्टाफ का भी हम देखते हैं, हम वहाँ से कमाते थोड़ी थे भाई। तो कोई गवर्नमेंट ने तो हमें दिए ही नहीं, हमारे जहाज ले जाते थे 15-15 दिन के लिए, रेनोवेशन करा, कितना खर्चा, अरे जहाज हमारे उठा के ले जाते थे, 15-15 दिन ऑपरेशन में जहाज नहीं होते थे, जो हम कमाते थे, किया था हमारा, लेकिन पैसा तो नहीं दिया हमने। तो वो जो भी टीम ले गए जहाज को, उनको बेड बना के दिए, रेनोवेशन करके दिए, उनके आराम का, और 15-15 दिन वहां उस एयरपोर्ट पे खड़ा रहा,
पीआईए को पीआईए के मुलाजिम ने तबाह नहीं किया, गवर्नमेंट ने खुद तबाह किया। हाँ, चंद लोग हैं पीआईए में जो उन्होंने अपने एजेंट बनाए, जो पीआईए को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते थे, उन्होंने अपने एजेंट बनाए ताकि पीआईए को कमजोर करें, वीक करें। पीआईए की रीढ़ की हड्डी थी भाई, हमने एयरलाइन बनाई। हम डिपेंडेंट नहीं थे गवर्नमेंट पे, कभी गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने खुद गवर्नमेंट को दिया। उनको मुफ्त की टिकट दी हैं, उनके जो रिटायर होने वाले वो डेपुटेशन में हमारे पास आ जाते हैं, फिर हम उनको अपने एमडी बना लेते हैं, चेयरमैन बना लेते हैं, फिर सारी जिंदगी उनकी और के बच्चों के टिकट्स मुफ्त में शुरू हो जाते हैं। वो बाहर घूमने फिरने बच्चों के पास जाते हैं, तो एयरपोर्ट बना लेते हैं जहाँ हमारा लोड ही नहीं होता, फैक्टर ही नहीं होता, क्योंकि वो उनको बच्चे के पास जाना होता है। तो उसने एयरपोर्ट क्रिएट कर दिया, वहाँ पे क्रिएट कर दिया, मार्केटिंग क्रिएट कर दिया। ये इश्यूज हैं पीआईए के। अब पीआईए तो पीआईए के मुलाजिम का कोई कसूर नहीं, उन्हें तो मेहनत की है, उन्होंने मजदूरी की है। उन्हें उनके अलावा जो चमचागिरी करते हैं, जो तरक्कियां पा रहे हैं, जो प्रमोशन लेते हैं, जो एलिट क्लास के आए हैं, जो राशि ब्यूरोक्रेसी के बच्चे जो भर्ती हो, ज्यादातर वही होते हैं। तो मेरिट तो है ही नहीं, पीआई में कभी मेरिट तो हुई नहीं, वही है। वो कहते हैं हम मेरिट में हैं, दूसरा कोई मेरिट नहीं, कहते हैं हम ही मेरिट पे हैं, क्योंकि वही सिलेक्शन कमेटी है, वही बॉडी है, सारी चीजें। लेकिन तबाही के सिलसिलेवार। तो ये पीआई की बातें पीआई की जगह पर अपनी जगह पे हैं। हम सब जानते हैं किसने पीआई को तबाह किया, कहाँ किया, किस किस का क्या रोल है, हमारे दोस्तों का भी क्या रोल है, हमारे साथियों का क्या रोल है। मेरा मकसद है कि हमने एजुकेट किया, अभी भी आप ये एजुकेशन दे रहे हैं आपकी जनरेशन को। इस वक्त जो बेटी है सिखा रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सीखो। अब पीआई में कोई प्रोफेशनल ही नहीं, वो सारे उनके खरीदार, उनके जो जिनमें पीआई कोड़ी के दाम खरीदने चाहते थे, ऑफशोर वर्कर चाहते हैं, पीआई से पाकिस्तान से रिटायर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी फिर बाहर जाती है, बच्चों समेत दूसरे दिन सामान समेट के उठा के ले जाती है, दूसरे दिन सामान बच्चों समेत वहां जाती है, वहां सेटल होती है, बच्चों को पढ़ाती है, और वहीं से पीआई का कारोबार। फिर हमारे लिए वो फ्यूल वगैरह, ये खाना, ये पिया खरीद करती है और महंगाई बढ़ती है। ये इश्यू है पीआई का। आप इस इश्यू को आप समझना पड़ेगा आपको। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आप पीआई को नहीं जान पाएंगे। हमने बहुत वर्क किया है पीआई, बहुत वर्क किया जान। ऐसे तो अपने करियर को दाव पे नहीं लगा, हमारे करियर दूसरी माना है। आज हम उसके लिए थोड़ी दिए थे, और हमने इस दुनिया में आना था, इस दुनिया में आके हमें कोई अच्छी चीज करनी है, अच्छी चीज करने के लिए हम आगे आते हैं और लोगों को सिखाते हैं। कोई सीखे न सीखे हमको बताते हैं, हमको सिखाते हैं, काम भी करते हैं, सिखाते हैं। बहुत सी चीजें हमने रिवाइव की। बहुत ये नहीं कि पीआई के पास कुछ नहीं था, सारे सॉफ्टवेयर सारे खरीदे, पैसे दिया, कोई काम भी नहीं कर रहा। किसी के पास एक्सपर्टाइज ही नहीं थी। अगर एक्सपर्टाइज थी भी तो वो फॉरेन प्रमोशन और फॉरेन के चक्कर में जहाँ डिपार्टमेंट में वहाँ भागा हुआ है। क्योंकि हमारे मार्केटिंग और ट्रैफिक तो सेक्शन है ना, जहाँ के लोग बाहर जाते हैं, आउट पायलट वगैरह फ्लाइट सर्विस वाले हैं, फिर ड्यूटी पे जाते हैं। सबकी कोशिश ये होती है कि आए भागें, सारी चीजें करें। सिस्टम है, सिस्टम के अंदर इस सिस्टम से लड़ना है, यही सिस्टम चलेगा, आखिर से चलेगा। हमारे जैसे मैं जाऊंगा इस दुनिया से, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे कि भाई आ जाओ। मेरा मकसद याद सिखा, ये इतनी सारी चीजें जो बना रहा हूँ, मॉर्निंग शो, सिर्फ आपको सिखाना है कि बेटा आ जाओ, सीख लो, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है, सीख लो, ट्रेन हो जाओ। हम बाहर हैं, 12 साल हो गए हैं रिटायर होने को, अब भी हम एक्सपर्ट हैं हर चीज के, अपडेट हैं। आप वहाँ रहते हो, अपडेट नहीं हो,
क्योंकि आप काम नहीं करते, बस ऊपर से जो बॉस है उसको खुश करते हो, बॉस ने कहा ये ले ये लाओ ये लाओ, उसकी वो खिदमत करते हो। कभी पहले उसकी सब्जियां लेके आते हो, फिर पीआई में एंट्री लेते हो, फिर वो आपको प्रोटोकॉल ऑफिसर बना लेता है, उनकी फैमिली बाहर से आती जाती है, आप उनको उठा के लाते हो, फिर आपको वो अपने सेक्शन में डाल देते हैं, फिर हमारे एमआईएस डिवीजन में आपको डाल देते हैं कि आपका अगर रोड शो बन जाए और फिर आप जाएं और प्रोटोकॉल करें, फिर आप एयरपोर्ट पे जाके उनके मेहमानों का सामान छुड़ाते हो या एक ड्रेस लगाते हो। यही तो धंधा है, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप एजुकेटेड लोग नहीं हो, आप क्लर्क, आप टाइपिस्ट हो, क्लर्क को टाइपिस्ट को जब इतना बना दिया जाए, डॉट कॉम बना दिया जाए, आप डॉट कॉम, ठीक है, आप डॉट कॉम है, पीआई में डॉट कॉम की जरूरत नहीं है, पीआई में प्रोफेशनल इंजीनियर्स की जरूरत है, पीआई में प्रोफेशनल इंजीनियर्स की जरूरत है, डॉट कॉम की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखिए कितना है, सारा खर्चा वहाँ आता है, वहाँ आईटी डिपार्टमेंट को पूरा मैनेज होता है, आपका सारे सिस्टम इसी से मैनेज होता है। तो ये सिस्टम, तो हम सिर्फ पीआई की बात क्यों कर रहे हैं, हर जगह बात करते हैं, हर जगह की बात करते हैं। अभी आओ, अभी आके बोलो, सीखो कैसे होता है, क्या होता है, काम करो, सीखो। मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ जो मीडिया से टैलेंट रखते हैं, जो लाइव आते हैं दिखाने के लिए, जिस तरीके से आप लाइव आते हैं, ये आप मोबाइल से भी आ सकते हैं, जरूर नहीं कि आप लैपटॉप में भी उठाओ और उसमें से लाइव, आप मोबाइल से भी ऐसे लाइव आ सकते हैं। आओ सीखो, नहीं मालूम तो आओ, हम सिखा देते हैं। पहले तो आप यहाँ हमसे ऑनलाइन पूछ लो कि कैसे होता है, मैं आपको ऑनलाइन बता दूँ। ये तो आप समझ जाओ। तो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डिस्कस कर सकते हैं, आप कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आप मेरे दोस्त हो, आप मुझे जानते हो या मेरे फेसबुक पे फ्रेंड हो, कोई भी हो, आओ बोलो, आप देखो, आप सीखो, आप ऐसे बनाओ, ऐसे लाइन स्ट्रीम बनाओ, लोगों से बात करो, लोगों को दिखाओ, लोगों से चेक करो ये कैसे लाइव हो जाता है, प्रोग्राम देखो लाइव, हम लाइव कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपको सिखाएंगे, हर बीट सिखाएंगे, हर काम सिखाएंगे, ये भी आपको सिखाने के लिए शुरू किया है। इसमें कमेंट्स भी दे सकते हो, कमेंट्स भी शो कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि कैसे आना है, डिस्कस कैसे करना है, मसला आना है तो मसला भी पूछ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आ सकते हो। खासकर पीआई वाले रिटायर हो गए हैं, अभी तक आपके वही टीचर हैं, वही उस्ताद हैं जो आपको सिखाते थे, जो हम आपको रैंक पे सिखाते थे, जो हम आपको वीवीआईपी सेल में सिखाते थे, वही हम टर्मिनल पे सिखाते थे, वही जो हम आप बैगेज सर्विस में आपको सिखाते थे, वही हम जो हेड ऑफिस में आपको सिखाते थे, वही जो हम फॉरेन हज पोस्टिंग पे आपको मॉनिटर करके आपको सिखाते थे। हम वही हैं, आज भी हम वही हैं, सीखो, मेरे पीआई के लिए सीखो। तो सिखाने के लिए बैठे हैं कि मर्जी है, आप सीखना चाहो तो सीखो, आपको आना चाहो तो आ जाओ, बैठे हैं। ये ट्यूटोरियल प्रोग्राम है,
ये कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं है। अब क्या पब्लिसिटी तो मेरी गाड़ी को बना क्या ये मीडिया की स्किल है तो सही, इस स्किल को दिखाना है, इसको करना है। चलो बोर हो गए तो छोटी सी दिखा देता हूँ आपको, अच्छा आप भी थोड़ा मेरी बातों से बोरियत ना हो। क्लिप की बात कर रहा था, क्या आपको मसला तो पीआई का चल रहा है, इशू भी पीआई पे चल रहा है सर, हम परेशान भी पीआई के लिए हैं। चलो सामने पीआई, चलो उसी पे बात कर लेते हैं भाई। आपने तो मुंह डॉट काम जा हुक्मरान PIAC जा नवा मेहमान PAC असां जो फख्र वा न कयो उनखे नुक़सान PAC वापस वठंदासीं इहो आ असांजो ईमान। ये तो असांजो ईमान आहे, असांजो प्रोजेक्ट PIAC वापस वठणी आहे। हमेशा ये वापस करे थी दिया जो पीपल्स पार्टी की तौर पर दिया को शक ना है तो पीपल्स पार्टी गरीब माण्हुनि जी मज़दूरनि जी हारियुनि जी आहे। दुश्मन सब पीपल्स पार्टी जा आहिनि, पंहिंजा बि आहिनि पराया बि आहिनि, सभु आहिनि। ज़ाहिरी आहे उहे सिंगल ते हलनि था, इशारा ॾियनि था उन्हनि खे, इशारनि ते हलनि था। सोशल मीडिया पे 24 कलाक धंधनि में लगा पिया आहिनि। जी जी, तो दोस्तों ये मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी ही इसको वापस लाएगी, क्योंकि अच्छे काम से पीपल्स पार्टी करती है, कब से शुरू से ही अच्छे काम। ये मशरक़ी पाकिस्तान आपका पीपल्स पार्टी ने आपको वापस रिवाइव करके दिया, भुट्टो साहब ने आपको पाकिस्तान रिवाइव करके दिया। और फिर दुश्मन फिर हिंदुस्तान आपके ऊपर हमला ना करे, आपको जंगी कैदी तो छुड़वाए, जमीन जंग की भी वापस मिलवाई। हम ये नहीं कहते कि आप एहसान फरामोशी करेंगे, आप हर आदमी की अपनी फितरत है, एहसान फरामोश तो एहसान फरामोशी करेंगे। और हमें एहसास है कि आप लोगों को अंग्रेज की गुलामी से निजात दिलाई, लेकिन आप लोग दुख कर रहे हो कि वहाँ खुश थे हम अंग्रेज के साथ चल, अंग्रेजी सीख लो बोलते थे। बहरहाल न्यूक्लियर आपको दिया तो सामने दिया, बेनजीर आई उसने आपको दिया, नौकरियां बाहर जो आप कर रहे हो तो सामने किया। तो सारा पाकिस्तान के लिए काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया, किसी और ने नहीं किया। तो ये PI भी वापस पीपल्स पार्टी देगी, कोई और नहीं देगी। जब हुकूमत आएगी तो आप देखो जैसे 52 वाले वापस आ गए ना, यही आ गए। बाकी इन लोगों को ढोलक ताशे बजाने दो, जो कुछ करें कितना करें, ये तो अल्लाह की तरफ से ना कि आपको कितना दिन तकलीफ को देखना है, ये तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। इंसान के बस की तो बात नहीं है वो अपने तकलीफों को निकाले, सलाह से मांगते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी आएगी, इस आप देखो ना सब लोग पूरे सोशल मीडिया पे छा गए हैं पीपल्स पार्टी, कभी किसको भगा रहे हैं, कभी कुछ नहीं हो रहा। आज भी सदर एक्टिव है, चाइना घूम रहा है, फैसले कर रहा है, और ये सेलिब्रेट जो दिन हो रहा है तो न्यूज भी आ रही है। लेकिन ये इनके जहन की गफलत है, इनको अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है। ये एलिट क्लास के ये जो जागीरदार सरमायादार कारखानेदार के खरीदे हुए लोग गुलाम हैं, इन्होंने जिंदगी सारी गुलामी में की है, तो गुलामी करते हैं, उनको आज़ादी मैसर नहीं। पीपल्स पार्टी आज़ाद लोगों की आज़ाद सोचती है, आज़ाद काम करती है। और आज भी ये सारी हुकूमत किसके कंधे पे? पीपल्स पार्टी के कंधे पे। अगर पीपल्स पार्टी कंधा इधर करे तो हुकूमत पे रियासत पे, तो फिर वही फितने शुरू हो जाएंगे जैसे पहले हुए थे। तो बहरहाल ये PI वालों घबराओ मत, जो वक्त आएगा पीपल्स पार्टी आएगी तो ये PI वापस ली जाएगी इंशाल्लाह, वापस लेंगे। बाकी किसी से दूर रखना है तो एजेंट का किरदार अदा करना है। उनको तो भेजा गया था कि पीपल्स पार्टी को PI को कमजोर करो, और कमजोर करके तो तोड़ो के हमले, फिर भी टूटी नहीं, कमजोर नहीं हुई।
आपने खुद उसको जबरदस्ती कब्जा करके कोड़ी पे डाल। आज भी पीआई टूटी नहीं है भाई। आप समझ रहे हो कि पीआई खत्म हो गई, पीआई आज भी अपने सारे एसेंस जमा है, आप खरीद करने की कुवत ही नहीं कर सकते। चलो अब बात ही हो रहा पीआई के ऊपर, आप बोर ना हो जाए तो छोटी सी चीजें बतानी पड़ती है। चलो देखें ये क्या करते हैं। PIAC की शान, ये कंटेंट मार्केटिंग नस्लों की पहचान। ना .com ना PIL ना है PIAHC, हम प्रोफेशनल्स जिनकी कुर्बानी है सच्ची। ये ऑफशोर की साजिश ना मंजूर, अपना 808 गूंजे जिसमें है दम जरूर। कराची की आवाज ये न्यू सैदाबाद, हम जिंदा कौम रखेंगे सब याद। तो जी हम सबको हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। और पीआई कहीं जाने वाली नहीं है, आ जाएगी। फिलहाल पीआई के ऊपर बर्डन है, कब्जा है पीआई के ऊपर। अपने घर के भी बहुत से लोग दुश्मन हैं, तो तकलीफें भी उनको आ रही है। पीआई को कमजोर किया है इन लोगों ने। एक तो वो ग्रुप जिसने सीखा नहीं, एक वो ग्रुप जो जल्दी जल्दी ऑफिसर बनने के शौक में क्लर्क से मैनेजमेंट में आ गए। टाइपिस्ट पे टाइप राइटर थे, टाइपिस्ट पे लिखते थे, वो फाइलें उठा के इधर उधर ले जाते थे। सब्जियां लेके आने वाले, प्रोटोकॉल करने वाले मैनेजमेंट की सब्जियां लाते थे घर में, बच्चों को खिलौने से खिलाते थे। तो वो भाई डीजीएमओ डायरेक्टर है हमारे पीआई के, जब ये हाल पीआई का होगा पीआई तो जाएगी, क्योंकि पीआई प्रोफेशनल के पास नहीं है। प्रोफेशनल चले गए, प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल वो नहीं है जो गोल्डन शेकर में चले गए, वो तो सब्जेक्ट टू टर्मिनेट थे, वो तो मुजरिम थे, उनको तो फैसिलिटेट किया गया। पीआई का सारा पैसा उनके ऊपर जाया करके उनको फैसिलिटेट किया गया। एक एक को जानता हूँ कि उनके क्या जुराए थे, एक एक को जानता हूँ, उनको फैसिलिटेट किया गया। प्रोफेशनल को तो इन्होंने सर्कुलर स्कूल में डाला है। जो प्रोफेशनल है उनके डिसिप्लिनरी एक्शन करके उनको टर्मिनेट किया है। एक माफिया था, ये पूरी माफिया है भाई। पीआईए को हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। है हमने अपना ब्लड दिया है, पीआई को खून दिया है, अपनी कुर्बानियां दी है सारी पीआईए के लिए जो कुछ किया है। तो मेरा मकसद है कि पीआईए के हालात आप देख रहे हो, आज पीआईए मजबूत है, सब कुछ है, लोग खराब है, लोग देते हैं। अच्छा आवाज घटा है, आवाज कम है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा आवाज घटा ॾिसां थो पिया क्लिप खे सही थो करियां त आवाज़ सही अचे थो। थैंक यू इरशाद कटपर साहब। हाणे आवाज़ कीअं पियो अचे, जेकर सही अचे त मूंखे ॿुधायो, क्लियर हुजे त पोइ कंटिन्यू करियां। आशा कटपर साहब आवाज़ बताएं सही है गलत है, आप मैसेज देंगे तो मैं आपका मैसेज तो डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आवाज़ कैसे आ रही है। उसको नीचे कर लेता हूँ कि मेरी आवाज़ कम क्यों आ रही है। माइक को यार वो गलती की, मेरा वो माइक कहीं मिसप्लेस हो गया है, वायरलेस माइक उसमें से करता, लेकिन अभी ये मैंने ये हैंड कैरी का माइक लगा लिया है टेम्पररी। लैपटॉप का माइक तो नज़दीक होना पड़ता है, स्टूडियो से आउट होना पड़ता है। तो आपको मेरा आवाज़ कैसे लग रहा है, साउंड आ रही है तो मुझे बता दें, थैंक यू। लेकिन फिर भी शायद के साथ थैंक यू। आप चाहो तो हमारे एंट्री हो सकते हो, हमारे प्रोग्राम में दाखिल हो सकते हो। हम कटपर साहब एक्चुअली हम जो प्रोग्राम ये कर रहे हैं ना, ये कोई पब्लिसिटी के लिए प्रोग्राम नहीं है, अपनी शोहरत के लिए प्रोग्राम नहीं है। बहुत शोहरत देख ली, बड़े बड़े इदारों में काम किया, शोहरत भी देख ली और अपना मनवा भी लिया। हम ये कर रहे हैं सिखाने के लिए, और हम जहाँ भी काम करते रहे हम लोगों को सिखाते थे। आज भी हम आपको सिखा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। खासतौर पर मेरे मीडिया के लोग जो हैं, जो मेरे मीडिया के लोग हैं, मेरे अदाकार, मेरे लीजेंडरी डायरेक्टर्स वगैरह जो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं,
तो वो उनको बता रहे हैं, या जो वो कॉमेडी मस्खरी टाइप प्रोग्राम करते हैं बाहर, उनको बता रहे हैं कि आप ऐसे ट्रांसमिशन बनाएं और अपने प्रोग्राम को ऐसे ट्रांसमिट करके और ऐसे बनाएं। तो इस तरीके से हम सिखा रहे हैं कि जी आप ट्रांसमिशन करें, और हम आप बता रहे हैं कि जी कैसे प्रोग्राम ट्रांसमिट किया जाता है, कैसे होता है, तो ट्रांसमिट करें, स्टूडियो बनाएं, स्टूडियो बना के सिखाएं। जो साफी हैं हमारे, उनको भी कहा गया कि आप जो वीडियो की रिपोर्टिंग करते हैं, इस तरीके से अपने घर से अपने कमरे में बैठ के ऐसा स्टूडियो बनाएं। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आप उसे कैसे काम करना है, तो ऐसे करके और लाइन ट्रांसमिशन करें। अखबार में तो दूसरे दिन आएगा जो आप रिपोर्ट भेजेंगे, या कहीं और होगा। तो अब आप शातिर पर साहब, आपने बताया नहीं कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, आवाज़ कम है, उसको मैंने क्या करूँ, काफ़ी कर दिया, नज़दीक कर दिया, बिल्कुल नज़दीक करके बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम का मकसद आपको मैंने पहले बता दिया, एजुकेशन, सॉलिड प्रोडक्शन, पब्लिकेशन, रिसर्च सेंटर, मल्टीमीडिया के साथ। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया, शायद मेरे काम कम सुनते हैं। हाँ हाँ, चलो थैंक यू सर। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैंने कोशिश की कि माइक के नज़दीक हो जाऊँ, सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम किया। मैं सिर्फ ये प्रोग्राम इसलिए क्या करता हूँ कि मैं अपने मीडिया के लोगों को, खासतौर पर मीडिया मैनेजमेंट, बहुत बड़ी मैनेजमेंट है जिसमें सहाफ़त भी आती है, जिसमें लिखियारी भी आते हैं, राइटर्स भी आते हैं, जिसमें डायरेक्टर्स भी आते हैं, जिसमें टेलीफिल्में बनाने वाले भी आते हैं। तो उन सब के लिए मुझे सिर्फ ये बताना था कि जी आप ये जो काम करते हैं तो अपनी ट्रांसमिशन लाइव करें, और आते हैं जो लाइव आ रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ। जो जैसे असलम भुट्टो साहब हैं, लाइव आते हैं, या दूसरे मेरे कई दोस्त हैं, टाकानी साहब हैं, लाइव आते हैं, या मेरे दूसरे कई दोस्त लाइव आते हैं, तो उनको बताता हूँ कि आपका वजह उसके कि आप व्हाट्सएप पे या उस पर सॉरी किसी फेसबुक पे उस पर दूसरे प्रोग्राम ऐड करें, आप इस तरीके से ट्रांसमिशन करें, प्रोग्राम की क्लिप दें, ट्रांसमिशन भी करें। आप बात करेंगे तो आखिर कितनी बात करेंगे, आपका मवाद कितना होगा, थक भी जाएंगे, पानी की भी जरूरत होगी। तो आप का मवाद, अब देखें मैं 57 मिनट हो चुके हैं, मैं 11:30 बजे से मैंने शुरू किया था ये अपनी मॉर्निंग शो। मुख्तलिफ टाइम होता है, मैं अचानक बस मूड आ जाता है तो शाम का कभी नाइट कर देता हूँ, कभी मिड नाइट कर देता हूँ, कभी शाम को कर देता हूँ। तो बहरहाल आप बोर हो रहे हैं तो एक और क्लिप सुना लेता हूँ आपको, क्योंकि बोरियत भी अच्छी बात नहीं। तो दोस्तों, आवाज़ का मसला सा ही है। इरशाद अकबर साहब ने बताया कि अब सही हो गया, ये गलत हमारा है। के प्रोफेशनल्स, कलमकार, टेक्नो मास्टर्स, ना के .com के महरे जो बेचें ख्वाब कोड़ियों के दाम पर। पीएल बना के कमजोर, पीएचसी की साजिशों से खबरदार। ये ऑफशोर नौकरशाही सुने, ये मुल्क है हमारा, ये अदारे हमारे यार। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्ट्रीब्यूशन, रगों में दौड़ता लहू, हम सुल्लीवुड की आवाज है, न्यू सईदाबाद का मंशूर सुन लो। जी हाँ, ये न्यू सईदाबाद का मंशूर है। न्यू सईदाबाद बॉलीवुड स्टूडियो है, जो किसी जमाने में फिल्म इंडस्ट्री हुआ करता था, जब हमारे कराची स्टूडियो कायम थे, यानी ईस्टर्न मॉडर्न और वेस्टर्न, वहाँ के डायरेक्टर्स आते थे, सईदाबाद में शूटिंग करते थे, और साईं मजहर शाह, हामिद शाह और इमदाद शाह राशदी हमारे मेज़बान हुआ करते थे। उनके फ्री लोकेशन मिलती थी इन डायरेक्टर्स को, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल जाती थी, उनको लोकेशन मिल जाती थी, बोर्डिंग लॉजिंग का सिस्टम फ्री था इनके लिए। तो इन्होंने बड़ी खिदमत की, तो इनकी खिदमत का अगर इतराफ़ नहीं करें तो बुरी बात है। तो सईदाबाद बॉलीवुड स्टूडियो सईदाबाद के नाम से भी है, आप इसको सिंध से भी शुरू कर सकते हैं। इस बार बॉलीवुड, जैसे बॉम्बे के लिए बॉलीवुड है, लाहौर के लिए बॉलीवुड है, तो
ये सॉलीवुड स्टूडियो की बातें हम आपसे कर रहे हैं। तो सॉलीवुड सिटी है हमारा, जहाँ पे ये फिल्में शूटिंग हुआ करती थी। जब सिंधी फिल्में कितनी बनती थी, पश्तो सिंधी पंजाबी फिल्में आती थी, लाहौर इंडस्ट्री लोग आते थे सैदाबाद में, यहाँ शूटिंग करते थे, जंगलों में, जंगल की शूटिंग होती थी, इनको घोड़े मुफ्त में मिलते थे, ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त में मिलती थी। तो ये सारा सिस्टम चलता था यहाँ पे। ये उस जमाने की बात हम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम हमारा सॉलीवुड कब से चल रहा है। ये मुर्शिदाबाद स्टूडियो है, तो हमने सोचा कि बजाय उसके कि हम मुर्शिदाबाद के इन लोगों को जिन्होंने बनाया सॉलीवुड स्टूडियो को, बहुत आगे चले गए। साईं हामिद शाह राशदी भी नहीं है, साईं मसरत शाह राशदी भी नहीं है, साईं मुमताज राशदी भी नहीं है, हुसैन शाह राशदी हैं, वो आजकल पता नहीं क्यों मीडिया से हट गए हैं। शायद काफ़ी मीडिया पे उन्होंने खर्च किया, मीडिया ने उसके पैसे खा लिए, चैनल ने और पैसे नहीं दिए, शायद कोई वजह हो। मेन मकसद ये है कि सॉलीवुड सिटी को प्रमोट करना है, लोगों को सिखाना है, एजुकेट करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। हम इंफॉर्मेशन देते हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं, हम शिक्षा देते हैं। मल्टीमीडिया की वेबसाइट्स मैंने शो की हैं अपने पुरानी, जब शुरू में मैंने जितने भी चैनल थे सबकी पहली वेबसाइट मैंने बनाई थी। ये तो ऑफिशियली आजकल वेबसाइट आप देख रहे हैं, तो बाद में बनी। सबसे पहले इनकी वेबसाइट जो है वो मैंने बनाई थी, बहुत में मैंने दिखाई थी, डिस्प्ले भी किया। आपने देखा कितना उस वक्त जब ये वेबसाइट बनती थी, तो ये अगर बाहर से आप बनवाते थे, वो भी इतनी मीडिया इतनी आम नहीं थी, 10,000 का एक पेज बनता है। और मैंने देखो एक एक मीडिया का वो सेट में पेज बनवा दिया, फ्री ऑफ लॉस, क्योंकि जज्बा था, कोशिश की कि हो। मैंने पीआई की वेबसाइट बनाई। मैं पीआई में जिस सेक्शन में काम करता हूँ, तो पीआई में क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है कि वहाँ पीछे से छुरी घोंपने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ मालूम नहीं होता कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। वो आपके साथ खाते हैं, आपके साथ लंच करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद वो अपने तरक्की के लिए आपके जिस्म पे छुरी घोंप देते हैं, और ताकि वो मैनेजमेंट के सामने आ जाए। आपको कट करके खुद सामने मैनेजमेंट में आ जाते हैं और बेनिफिट बन जाते हैं, बार बार फॉरेन पोस्टिंग देते हैं, प्रमोशन लेते हैं। तो इसलिए खतरा ज्यादा था पीआई में। तो पीआई में जितने भी मैंने काम किए, वेबसाइट बना के किए, और मुझे इन्होंने सेक्शन भी बड़े खतरनाक दिए। इन फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, आप मालूम है कहाँ एजेंसी से बात करनी पड़ती है, FIA से, वहाँ से ह्यूमन स्मगलिंग होती थी वहाँ पे, और इतना खतरनाक। और पीआई का कितना पैसा खर्च होता था, 450 केसेस होते थे डेली, और कितने एक डिपॉजिट को पीआई को खाना पीना सारा एक्सपेंडिचर लॉस है, वो मैंने खत्म कर दिया, एक तक रहने दिया, तो मैंने वो कर दिया। यूएलडी मैनेजमेंट सिस्टम था पीआई का, वो मैंने रिस्ट्रक्चर किया। मैंने 2 सेक्शन पीआई के रिस्ट्रक्चर किए। तो आसान बात तो नहीं है, दुश्मनी तो करनी थी इन लोगों को, क्योंकि इनके पास स्किल तो नहीं थी। ये बाबू थे, क्लर्क थे, MBA करने वाले। क्योंकि MBA इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि ये उस मार्केटिंग टेक्निक को इस्तेमाल तो नहीं करते। उन्होंने पीआई को तो वो बेच दिया, ये कमाया तो नहीं पीआई के लिए। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS वर्ड पे एक्सपर्ट है, उस पर प्रेजेंटेशन बना लेते हैं अंग्रेजी के लिए, कोई समरी मैनेजमेंट के लिए कोई समरी बना लेते हैं, उसके अंदर कोई वो डेटा डाल देते हैं एक्सेल पे। और अभी जो उसका जो तो एक्सेस बार, वो तो यूनिट इस्तेमाल ही नहीं जानते ये लोग, क्योंकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट है, IT वाले जानते हैं, ये लोग तो वो भी नहीं जानते। तो मेरे मकसद है, बाबू हैं, क्लर्क हैं, बड़े लोगों के बच्चे हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नॉन रजिस्टर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, फॉरेन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो ये बन ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने अपने यूनिवर्सिटियाँ खोल दी, जो रजिस्टर भी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मालूम है कि बड़ा ग्राउंड चाहिए, बड़े डिसिप्लिन चाहिए, उसकी कंडीशन आपको मालूम है कि कैसे होती है। तो ये लोग आए, तो ये एडिट क्लास है, राशि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, वही आते हैं। आजकल तो नौकरी में तो शरीफ आदमी तो जाएगी, मेरिट तो जाती नहीं है। और ये फिर दूसरों को एक ग्रुप बनाते हैं, या साथी बनाना चाहिए आपको, ये सहूलतकार हो तो आप उनके साथ कर सकते हैं, फिर वो आपको अपने ग्रुप में लेंगे, चाहे फिर आप छोटे तबके से हों, बाबू हो। ये PIA को बाबू ने तबाह किया, ये MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करेगा, इनकी एक्सपर्टाइज यही है। इन्होंने कभी नाम कहा PIA, आप देखो कितनी इंजीनियरिंग पढ़ी है, हमारे प्रिसिशन इंजीनियरिंग, ये है वो सारी IT
ये सारे इंजीनियरिंग है, यहाँ पे इंजीनियरिंग की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है। तो यहाँ तो लेमैन की जरूरत नहीं है, क्लर्क्स। अब पीआईए चला रहे हैं क्लर्क्स, वो और उनको अपने डायरेक्टर और जी बना दिया। जो हमारे टाइपिस्ट होते थे, ग्रुप 1 2 3 को बंदे होते थे टाइप करते थे, उनसे हम कहते थे यार वो टाइप राइटर पे जाके ये मिनट बना के लाओ, ये लिख के लाओ, उसको बुला के और उसको डिक्टेशन देते थे, ये राइट करो, ये करो, फिर उसे अप्रूवल लेते थे। अब एमएस वर्ड आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया है, अब उस पे हैं तो अब ये भाई डायरेक्टर हैं हमारे, आजकल हमारे जीएम है ये .com, और डायरेक्टर और सीईओ बन के रिटायर हो गए। कल आए हफ्तों के अंदर सीईओ भी बन गए, तबाह भी कर देते, शरीर होकर निकल भी गए। जब जाहिर हो गया कि करप्ट माफिया है, करप्ट माफिया ने एंट्री दी तो हमको मालूम है चोर की गाड़ी में तिनका तो होता है, चोर रहता तो नहीं है, लेकिन चोर के सहूलत कार जरूर रहते हैं। तो पीआई का चोरों ने खाना खराब किया, सिस्टम है पीआई का जिसके लिए हम चीखते हैं चिल्लाते हैं। हमने कोशिश की, 27 साल कोशिश की, 27 साल इनको बेनकाब करने की कोशिश की, क्या कर सकते थे हम? प्रमोशन बढ़ती हमारी, यानी मिली हुई प्रमोशन, वन टाइम प्रमोशन, वो भी नहीं उठा, और इंटरनल वैकेंसी मेरिट पे टॉप पोजीशन लेने के बावजूद भी प्रमोशन होने, ये तो लोग हैं। और फिर है, जब ये लोग आके आपकी इंटरव्यू टेस्ट लें और आपको बताएं कि आप मेरिट पे नहीं हो, तो हैरत की बात। सिफारिशी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर इंजीनियर और प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते थे कभी, और ऐसे ही वो शीशा पिया और जान जम पिए और मोबाइल गाड़ी में घूमने वाले, एडिट क्लास की सारी चीजें, उनके बच्चे वही हैं। पूरे पाकिस्तान में यही है, पूरे इदारों में यही है। सब ब्रिटिश राज नौकरशाही जो भी थे उनके बच्चे हैं, वो सारे हैं, वो काबिज हैं। आगे आने नहीं देते लोकल लोगों को, काम नहीं करने देते। घंटा 6 मिनट हो गई मेरी ट्रांसमिशन को, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी ट्रांसमिशन बंद करूं और अलविदा करूं आपसे? क्योंकि तो बहुत टाइम हो गया, 1 महीना बहुत टाइम हो गया और सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप शायद से किसी और से बात करना चाह रहे हैं। मेरा नाम ही अखलाक तो डायरेक्टर अली अकबर पठान की आईडी आजकल बहुत फ्रॉड आ रहा है। लोग क्या करें कि हमारे फनकारों की फेक आइडिया बना रहे हैं। अभी एक आया, कई मेरे डायरेक्टर हैं अली अकबर पठान साहब, किसने उसकी फेक आईडी बनाई है, उस फेक आईडी पे मुझसे बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हम तो जानते हैं ना अपने दोस्तों को, उनके सीक्रेट वर्ड जानते हैं। एक ने तो बहुत बड़े ने मुझे कहा कि जी मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके पास भेजूं, सेव करूं। अब ये ऐसी बातें, कोई मांग रहा है, कोई दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये फेक आईडी है, तो फेक आईडी पे हैं। लेकिन हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, सवाल कर लेता हूँ कि भाई ये, तो वो जवाब नहीं दे पाते। जब जवाब नहीं देते, जारी है तो वो असली आदमी हो तो वो जवाब देगा, जो जिनके साथ हमारा रिलेशन होता है, रास्ता होता है, तो वही जवाब देगा। फेक आईडी वाला तो नहीं जवाब देगा। अभी भी एक साहब आए मुझे कह रहे हैं कि, तो मैंने कहा भाई आपने डायरेक्टर अली अकबर पठान की आईडी क्यों बनाई है? कहता है कि मैं अखलाक अहमद हूँ। अखलाक अहमद हो, कोई भी हो, आपने मेरे डायरेक्टर की नाम के ऊपर आईडी क्यों बनाई है? आप नहीं बना सकते, आपको चीज करना, आपके खिलाफ तो केस करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया, नमाज का टाइम भी होने वाला है, अज़ान आएगी तो फिर चले जाएंगे, तो क्यों ना हम अलविदा करें। और आपसे काफ़ी टाइम होता है, हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम देगा, लेकिन हम पहले भी आपको बता चुके हैं हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम खुद को प्रेजेंट करें। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम तो वापस करें।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर जो भी टाइम होगा आके देखें ना, एक मरतबा आप मीडिया पे आकर देखें कि आप लाइव देख कैसे बात कर सकते हैं, कैसे लाइव देख। चलो